Namaste, welcome to the channel Analytica Ayurveda. We are always searching some different titles and the different relevant topics to discuss with you. और इसी सिलसिले में आप सब जानते हो कि आजकल NCISM ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसको कि ट्रांजिशनल करिकुलम कहा जाता है. They have started it for the undergraduate as well as for the postgraduates, and the undergraduate is also for to make them familiarize what is the Ayurveda, and many more titles are given by the NCISM to the colleges to introduce the newly admitted scholars who are there in their colleges with the science background, inter science or the BSc, and then selected into the course of the BAMS. And the same way, the NCISM also has given a program for the postgraduate studies. So recently, just yesterday on the 1st November, I delivered 4th lecture of the day, first day 4th lecture, because there were many good speakers before me. They were the Professor Yashwant Chauhan, they were our Dean Professor B.K. Goswami, and then the Principal P.K. Singh. And the 4th lecture was mine there, the last one. And I discussed with the students the first day in their respective college as a student of Ayurveda. So, fine. So, I tried to make it something very much interesting, and just I welcome you for these titles, and what I feel now we should discuss this. And last year also in the transitional curriculum, I interacted with the students of the Neha Shillong, I interacted with the students of the NIADU Jaipur, of course the Banaras Hindu University, and some more colleges. That was the 2022. Here in the 2023, I am starting with this session, and I thought to give it in some different flavor, color, and something interesting. So I just selected here the title, Why Should I Do BAMS? ठीक है, आपका एडमिशन हो गया, आप BMS में आ गए, और किन कारणों से आए वो भी अगली स्लाइड पर बात करेंगे. लेकिन अगर हम BMS में आ गए तो मैं क्यों अपने आप से सवाल पूछूं कि मैं BMS क्यों करूं. तो ठीक है, इसको बात करने के लिए मैं आपको आपके लेवल पर ले गया. मतलब कब? BMS एडमिशन बैच 1986 में जब मेरा एडमिशन हुआ था BAMS फर्स्ट ईयर में, जुलाई 1986 at Rajkiya Ayurvedic College, Gurukul Kangadi, then Uttar Pradesh, right? And the university was the Kanpur University, Kanpur. Everything is now changed there. The name of the university is also changed. Name of the college is also changed. The name of the state is also changed. Everything. So, present is my designation. And see here, on the screen it is very much visible that here we are talking about the National Ayurveda Day 2023 theme, history, significance. Friends, everything is changed. So for the attitude of the world for Ayurveda, this picture I have not taken from the PIB, Press Information Bureau. This picture I have not taken from the releases of the Ministry of Ayush. This one, that is the National Ayurveda Day 2023 theme, history and significance. This picture is from one of the topmost coaching center meant for the civil services examination, जहाँ पर IAS की तैयारी की जाती है और एस्पिरेंट्स को ये बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ समझनी है और क्या आपके कंपटीशन में आ सकता है, क्या आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है IAS प्री में. वहाँ पर जैसे ये डिक्लेयर हुआ है, अब वहाँ पर आयुर्वेद के बहुत सारे टाइटल्स मिलते हैं. तो दिस इज़ फ्रॉम द दृष्टि IAS, एंड दे आर नाउ मेकिंग रट्टाफिकेशन. या ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं.
तो कि थीम क्या है इस साल 2023 के, मतलब IAS प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल आयुर्वेदा डे 2022 की क्या थीम थी, 2023 की क्या थीम थी। जैसे कि इस साल की थीम है आयुर्वेदा फॉर एवरीवन एवरी डे। तो ये एक वहाँ से लिया गया पिक्चर है जहाँ पर कि उस IAS कोचिंग सेंटर ने अपने IAS एस्पिरेंट्स को ये पढ़ाने के लिए लिया है। चलिए, तो इस बैकग्राउंड के साथ वही क्वेश्चन, व्हाई शुड आई डू BAMS। और मैं समझता हूँ कि आधे घंटे के बाद, आधा घंटा शायद लग जाएगा इस 10-15 स्लाइड्स में, 15 भी नहीं है और 10 से ज़्यादा हैं, 14 हैं, कि कैसे हम लोग ये करें। और लास्ट में आप से फिर पूछूंगा कि व्हाई शुड आई डू BAMS। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल रीजंस पर बात कर लेते हैं। और आप जो नए BAMS स्कॉलर्स हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, आपने इसी साल एडमिशन लिया है, ऑल अक्रॉस इंडिया, अक्खा इंडिया में किसी भी कॉलेज में, सब जगह कॉलेज ट्रांजिशनल क्यूरिकुलम के प्रोग्राम्स कर रहे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे लर्नड स्पीकर्स और लर्नड स्कॉलर्स आपके सामने होंगे ये बताने के लिए कि आयुर्वेद में कितनी पोटेंसी है। तो एक मैं भी छोटा सा आयुर्वेद का विद्यार्थी आपके सामने हूँ और मैं आपसे कुछ जिज्ञासा बस बात कर रहा हूँ कि हाँ, और आप जो कि BAMS में अभी नए नए फर्स्ट ईयर में आए हैं, और चाहे जिस कॉलेज में हो, जितने भी हमारे पास 350-400 कॉलेज हैं, वो तो एग्जैक्ट नंबर NCISM के पास होगा, एवरेज आई थिंक कि इतने कॉलेजेस तो हैं ही हैं। और मैं बहुत अपडेट नहीं हूँ इस समय कि टोटल इंडिया में कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस चल रहे हैं, सॉरी फॉर दिस। कभी CCIM के समय पर जब ये सब दौड़ा वगैरह करते थे तो अपडेट रहते थे, आजकल थोड़ा संन्यास ले लिया है इन सारी चीज़ों से, और इसलिए हमें एकदम एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं फिगर पता है कि कितने कॉलेजेस इस समय रिकॉग्नाइज्ड हैं और कितने चल रहे हैं, बट आई होप कि 350 से ज़्यादा ही होंगे। तो टेक्निकल रीजन आप वो 350 जो लोग हैं आयुर्वेदा कॉलेजेस में, मैं उन सबको एड्रेस कर रहा हूँ इस समय। देखिए, पहली सच्चाई क्या है, I failed to secure appropriate marks in NEET UG to get a seat of MBBS. This is true for 98% students of the BAMS first year. Only 2% may be there in the deeper side somewhere or anywhere. Why I say it in the southern India or the northern India, western or western India, anywhere. It may be 2-3, a maximum 5%. They have not opted for MBBS. They have everything to get MBBS seat, but getting seats in the BAMS. It may be true for those who are opting BHU in the NEET over these regional medical colleges or newly established medical colleges where no infrastructure is there, or either in the ITRA Jamnagar or the All India Institute of Ayurveda Goa. Those who are getting MBBS seat but the very new primitive medical college where nothing is there in the name of the medical college, they are but getting MBBS seat, but they have opted for the BAMS. But it is for the 95% that I failed to secure. I am talking in your language कि why should I do BAMS? आप BAMS क्यों करें? मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं BAMS क्यों किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप BAMS क्यों करें। तो आपने मुझे उत्तर दिया, I failed to secure appropriate marks in NEET UG to get a seat of MBBS. True. My parents are unable to sponsor more preparation and the coaching. हाँ, ये भी सही है. This is also true, my dear. Because you were saying, पापा एक चांस और दे दीजिए, मम्मी एक चांस और दिला दो पापा से, मम्मी एक चांस और दे दो। आप 2 साल 3 साल तैयारी कर चुके हो, आपका मन, आप बिल्कुल BAMS में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। आपके क्लासमेट्स, बैचमेट्स MBBS में जा चुके हैं, वो अपने ड्रीम्स बताते हैं, तो आप चाहते हो कि एक बार और करो। बट आपके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, इनफ, अब आपको कोई तैयारी करने के लिए और कोई कोचिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा, आप BAMS में एडमिशन लीजिए। चलिए, तो आपने ले लिया। ये एक दूसरा रीज़न भी हो सकता है, आई टुक एडमिशन इन BAMS एज़ पर माई ओन, जो कि मैं अभी चर्चा कर रहा था, इसलिए मैंने बड़ा अच्छा एक कलर दिया है ग्रीन वाला। या एक और भी उससे अच्छा कलर हो से एक बात आ सकती है कि आई टुक एडमिशन इन BAMS टू फुलफिल माई ड्रीम्स टू बी ए डॉक्टर एनी हाउ, एनी वे एंड एनी वेयर। मुझे बस डॉक्टर बनना था, भले वो BAMS की डिग्री मिले, BHMS की डिग्री मिले, BSMS की डिग्री मिले, कोई डिग्री मिले, मुझे बस डॉक्टर बनना था, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, और चाहे वो एनी हाउ, एनी वे एंड एनी वेयर, किसी भी कॉलेज में कहीं भी मिले, बस मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, अपने साथ भी देखे हैं, जो कि एकदम
डेडिकेटेड थे कि नहीं मुझे बस यही करना है। या आप बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आप अपडेट हैं, आप बहुत अच्छे अपडेट हैं, एवरीथिंग जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर IAS कोचिंग सेंटर सब पढ़ा रहे हैं कि आयुर्वेदा डे की थीम क्या है, तो उस तरीके से आप आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हों और आप 20 साल पहले का सोच रहे हों, तो 20 साल बाद आने वाला सोच रहे हों, तो आपने खुद ही लिखा, आई कंसिडर्ड ऑल टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ आयुर्वेदा, सो आई एम हियर इन BMS विथ ए सेंसिबल एंड मोमेंचुअस प्राइड। सब कुछ जानते हुए भी, जैसे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, हम टीचर्स उनका एग्जाम्पल देते हैं, देखो देखो उसको मिलो, वो जो BMS फर्स्ट ईयर में है, वो वहाँ के एक पुराना अच्छा मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ के BMS करने आया है। ऐसे बच्चे भी हैं। तो उनके ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई इनको जागृत रखा जाए, नहीं तो ये सो जाएंगे। तो चलिए इनको जागृत रखते हैं, सोने न दिया जाए। हाँ, तो ये रहा। फिर आपका मिडनाइट कन्फेशन आया, ये यार सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये मिडनाइट कन्फेशन जो कॉलेज में पहले दिन जब हॉस्टल में आप रुके और अकेले रहे अपने, तो आपको ये आया कि नहीं मैं तो BMS में इसलिए आया या आई कि मेरे लिए ऑल अपॉर्चुनिटी फॉर मी आर ब्लॉक्ड नाउ, सो आई एम इन BMS हियर। ये भी एक आपको फीलिंग आ सकती है। चलिए थोड़ा सा और देखें दूसरे पहलू, क्योंकि आप तो आज ये जनरेशन इतनी स्मार्ट है, इतनी तेज़ है कि वो बहुत आगे का सोचती है और तब जाकर कोई भी काम करती है। यहाँ क्या है, हेडिंग द सोशल रीजन्स। आप देख रहे हैं, ऑल अराउंड कॉमनर्स इलाइट्स आर अप्रिशिएटिंग आयुर्वेदा एट द मोमेंट। सभी लोग आयुर्वेद के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपके सारे TV प्रोग्राम्स आप देखते होंगे, घर में चैनल, भले कोचिंग सेंटर में थे लेकिन जब घर आते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं। या आप ये भी पढ़ रहे हैं न्यूज़ में कि ऑल अराउंड गवर्नमेंट्स, प्राइवेट, कॉरपोरेट सेक्टर आर एक्सेप्टिंग आयुर्वेदा। आप हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुन रहे हों या बड़े बड़े मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट देख रहे हों, आपको तो वो दिखता होगा जैसे कि IAS वाले लोग आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके कोचिंग वाले लोग भी आयुर्वेद पर बात करते हों और ये कहते हों कि नहीं भाई आयुर्वेद के बड़े अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए आप आए। फिर ऑल अराउंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग क्रिएटेड फॉर आयुर्वेदा। आप ये भी आ रहे हैं कि हाँ भाई इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी, जितनी वैकेंसीज़ आ रही हैं आयुर्वेद के लिए। चलो ठीक है, अभी आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए, पिछले 3-4 सालों में 6,600-700 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट आई। हालांकि ये संख्या बहुत कम है जितने BMS प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लेकिन जहाँ कुछ नहीं निकलता था 10 साल, इतना तो आया। देन ऑल अराउंड नेशनल मूवमेंट्स आर इन फेवर ऑफ आयुर्वेदा। ट्रू, यू कैन फील इट, यू कैन पल्पेट इट, यू कैन टच इट, यू कैन परसीव इट कि देयर इज द नेशनल मूवमेंट्स आर इन द फेवर ऑफ आयुर्वेदा। फिर देखिए, ऑल अराउंड हाई सोशल रिकॉग्निशन आर नाउ फॉर आयुर्वेदा। ये सोशल शब्द ऊपर भी हेडिंग में मैंने सोशल दिया है। अभी भी आप देखिए सोसाइटी में, आपने आस पास पड़ोस में, आप BMS में बच्चे का आपका एडमिशन हुआ है, आपके पड़ोसी, तो पड़ोसियों की तो बात अलग है कि वो कब खुश होते हैं कब दुखी होते हैं, लेकिन अच्छा BMS हुआ है तो अब पहले अगर 30 साल पहले हमारे समय में अगर कोई BMS करता था तो कोई वैल्यू नहीं थी। अच्छा ठीक है ना, ये कौन पढ़ाई होता है, ऐसा भी लोग पूछ दिया करते थे कि हम तो डॉक्टर के नाम पर, होम्योपैथी ज़्यादा पॉपुलर थी कि आयुर्वेद, एलोपैथ जानते हैं, होम्योपैथ जानते हैं, आयुर्वेद में भी पढ़ाई होती है। अच्छा, डॉक्टरी की पढ़ाई आयुर्वेद में भी होती है। ये सब कमेंट मैंने उस समय के ज़माने में सुने हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग कहते हैं अच्छा आयुर्वेद में है, ठीक है, तो ये एक हाई सोशल रिकॉग्निशन है। फिर इट विल फैसिलिटेट, ये लाइन बड़ी मज़ेदार है, इसको ज़रा ढंग से आप सुन रहे होंगे। इट विल फैसिलिटेट माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल सोशल ग्रोथ विच इंक्लूड माई मैरिज, मॉनिटरी स्टेटस एंड मैनी मोर मोमेंचुअस मोमेंट्स। हाँ, आप इसलिए आ गए BMS करने कि इससे जो है मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल सोशल ग्रोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल ग्रोथ, ज़रूर होनी है। और स्पेशली फॉर गर्ल्स तो पूछिए ही मत, क्योंकि आजकल हर MBBS लड़का, पहली प्रीफर उसकी MBBS लड़की है, लेकिन सेकंड पे वो सीधे पर BMS लड़कियों को ढूंढता है, क्योंकि वो जानता है कि आने वाला समय इंटीग्रेशन का है। तो एक प्रोस्पेक्टिव जो है सोशली एक है कि मैरिज से लेकर के और चाहे मॉनिटरी स्टेटस भी और बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल आयुर्वेद के लिए हैं। और आपकी एज में ये बताना ज़रूरी है
कि नहीं आप एक अच्छे कदम पर जा रहे हैं या आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, आपने सोच रखा है आई वांट टू बी नेक्स्ट बाबा रामदेव या द आचार्य बालकृष्ण और श्री श्री रविशंकर और मे बी Sadhguru, all are having a in backdrop Ayurveda business. Yes, everyone. So आप ये करना चाहते हो या और भी बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेदा को एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड एज ए स्पिरिचुअलिटी भी इसको बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो चलिए साहब, ये सोशल रीजन था। चलिए अब किन्हीं भी कारणों से आप ओके आई एम हियर इन एन आयुर्वेदिक कॉलेज, सो व्हाट नाउ एंड ऑनवर्ड। कोई भी आपसे पूछे ठीक है अब तो आप आ गए बीएमएस करने, तो इस बीएमएस करने आप आ गए तो मीन्स व्हाट, सो व्हाट। कोई आपको अगर नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है सोशली, चाहे टेक्निकली या किसी भी रीजन से आपके सिस्टम को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है और आपको ऐसे मुंह चिढ़ा करके पूछ रहा है करा के सो व्हाट, इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन द बीएमएस सो व्हाट, यू आर इन्फीरियर टू द एमबीबीएस, राइट। तो उसका जवाब आगे के स्लाइड्स में अभी देते हैं। एंड तो नाउ एंड ऑनवर्ड्स क्या है, लेकिन उसके पहले आगे जाने के पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए कि आयुर्वेदा मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि आयुर्वेदा 5000 ईयर्स, अब 3000 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है कि उससे भी पुराना है। अभी फर्स्ट ईयर में आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे the teachers of the Samhita, and there is a very lot of conflict of interest about the settlement of the period, but all around चलिए उनको फैसला करने दीजिए, आप 5000 ईयर मान के चलिए। मैं पूरा ये 5 डिवीजन किया हूँ, आयुर्वेदा अप टू 18th AD, आयुर्वेदा अप टू 1947, आयुर्वेदा फ्रॉम 1947 to 2014 and to after 2014 what's going on. See here Ayurveda is the like Ayurveda system of medicine in the whole period till the 18th AD. But 18th AD, the Indian continent, the Bharatiya Sanskriti and the Sabhyata was attacked by effectively by the Britishers. It was attacks started in the 11th AD itself, or the before then 8th AD by the followers of the Islam. But they respected their system of medicine Ayurveda too at that moment, and they spread the Unani. But these Britishers from 18th AD to the 1947, they crush Ayurveda like anything. Okay. Then from 1947 to 2015, so 1947 to 2015, this is the government of political party known as the Indian National Congress, which deceive Ayurveda like anything. As I can use the word deceive, because in the 1920, 1940, they passed the political resolutions in their national assemblies that after independence Ayurveda will be the national system of the medicine. But what happened, everyone is knowing कि 1947 to 2014 we were, yes, there was a separate department in the 1993, but the momentum we are getting up to the 2014, it is not before. So this is our Prime Minister Narendra Modi ji, who is giving a specific intention to the Ayurveda department, and now today everything is there. So it is what? See this paper, it is not clear to you, but if you just get it and the future of the medicine frontier is in the integrative health and the medicines, and see this picture is showing that the future is of the integrative. What it mean I shall tell you later. So here futuristic fine system of medicine is Ayurveda and having potency to be the part of an integrated system of medicine. Yes, this time you are going to you have taken admission into the Ayurveda and you are going to study Ayurveda along with some NCSM syllabus, something of the science, modern science or the allopathic science. But days are coming up to the 2030 perhaps the Niti Aayog is making some documents, and Honorable High Court Delhi also has given the direction for the integration of the systems, and it may be that up to 2030 there will be a course where all pathies are merged basic level, and then 3 year for everyone, then as per the merit and the choice and the everything, Ayurveda, homeopathy, allopathy, etc. means the integration. So
अब आप BMS में आ गए, आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, क्वेश्चंस हैं कि आखिर इसका लीगल स्टेटस क्या है। होता है ना कि आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो पूछते हैं कि इसका एफिलिएशन क्या है, ये किस यूनिवर्सिटी से है, इसका बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। किसी भी कोर्स में आप जाते हैं, वेटनरी से लेकर लॉ से लेकर के इवन सिंपल आप हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ने जाते हैं तो CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, आपका स्टेट बोर्ड है, तो ये सारी चीज़ें गार्जियंस पूछते हैं। नाउ अब आपके दिमाग में होगा कि भाई आयुर्वेद का लीगल स्टेटस क्या है। तो सी हियर इज द बुक दैट इज द मेनली कंसंट्रेटिंग विद द मेडिसिन. It is available freely on the net, but see here, up to 1970 Ayurveda studies were governed by the different boards: Travancore board, Baroda board, Calcutta board and Jaipur board. Nothing is uniform in our country. From 1947 was the independent time, but up to the 1970. In the 1970, this Central Council of Indian Medicine was formed, and after 50 years of the 19 CCIM, now we have NCISM, that is the National Commission for Indian System of Medicine. From the 2020 and onward we are going on. Mean what I wish to say, feel free, be happy. The Ayurveda is a registered, recognized, legal system of medicine, but in India only. It is not having that privilege what the MBBS is having, that their degrees are recognized in all across 192 countries of the all members of the UNO. Here we are in India. In India, our system is, there are many countries, they have not recognized their own traditional system of medicines as the legal system of medicine. That is the impact of the colonial rulers or the mindset. They have de-recognized their own system of medicine as a system of medicine. Many countries in the Africa, yes. Some countries in the Arabian countries, yes. So here in India, भारत में आयुर्वेद एक संपूर्ण वैधानिक चिकित्सा पद्धति है। और आप ये सोचें कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हो कि नहीं, आप के लिखे पर कोर्ट में गवाही हो सकती है कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो NCISM के गजेट्स को आप जाकर के देखिए, ऐसा वो कोई काम नहीं है लीगली जो MBBS कर सकता है और आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपने खुद सोच लिया कि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम BMS हैं, या जो ऑफिस में क्लर्क बैठा हुआ है उसने समझा दिया आपको कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, या जिस ऑफिस में आपका सर्टिफिकेट जा रहा है उस ऑफिस के अधिकारी और बाबू ये सोच के बैठे कि नहीं ये तो आयुर्वेद वाला कर ही नहीं सकता है। अपने आप उन्होंने अपने मन में नियम बना लिए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चैलेंज, अब आप जब तक आएंगे 5 साल पूरा करके, तब तक स्थिति और बेहतर हो चुकी होगी। तो ये आप सारे काम कर सकते हो। रही बात आपकी दवाएँ, ये हिस्सा दवाओं पर है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि आयुर्वेद मतलब क्या है, तुलसी है, आंवला है, वो आयुर्वेद है। शतावरी है, अश्वगंधा, वो आयुर्वेद है। त्रिफला चूर्ण आपने सुना होगा, ठीक है, आपके जहाँ से ग्रोसरी का सामान आता है वहाँ से त्रिफला चूर्ण आ गया, वो दे देता है। मेथी का चूर्ण, वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद है, पक्का आयुर्वेद है, इसमें हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, आयुर्वेद है वो। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन अलग चीज़ हैं, उनके लिए इतने सारे सिस्टम हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना हुआ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 बना हुआ है। ड्रग रूल सब हो गया 1945, कॉस्मेटिक्स रूल अब अलग हो गया है, दोनों DMR है। एकदम अलग दुनिया है जो जानते ही नहीं बहुत सारे लोग। बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों को नहीं पता कि आयुर्वेद की दवा बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। आयुर्वेद की दवा बनाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन की चीज़ें वैसे ही काम करती हैं जैसे एक एलोपैथिक मेडिसिन के लिए काम करती हैं, एट पार। लेकिन नहीं, जागरूकता नहीं है लोगों में। लोग यही समझते हैं कि जो धर्म केंद्रों पर, धर्म आस्था केंद्रों पर एक दवाई की दुकान पर कुछ लगा करके बिक रही है, या वो कचहरी पर जो बेचा जा रहा है वही आयुर्वेद है। वो सब गलत है। सब पर पीनल एक्शन हो सकता है, सबको लीगल नोटिस जा सकती है, राइट। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उतनी ही सिस्टमेटाइज हैं। हाँ, इनके क्वालिटी कंट्रोल पे काम हो रहा है, लेकिन लीगलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंस सब कुछ वैसे ही है जैसा एक एलोपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर के लिए होता है। इतनी मोटी किताबें हम लोगों की भी चलती हैं ये वाली। तो अब एक जगह थोड़ी सी दिक्कत है जब लीगल की बात आ रही है। क्या? डिफरेंट डिवाइडेड ओपिनियंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, और इस डिफरेंट ओपिनियन के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, होता है। आप देखिए ना, किसी भी मुकदमे में आप इंटर पास करके आए हैं तो आप 20 साल के करीब तो हैं ही हैं, या
1-2 साल ही कम होंगे 20 साल से, तो आप या तो भारत के वोटर हो ही चुके होंगे या होने वाले होंगे, तो आपके मत की वैल्यू है। तो देखिए हमारे यहाँ कोर्ट्स में जैसा आर्गुमेंट होता है, जैसा लर्नेड काउंसल्स केस प्रेजेंट करते हैं, उसके हिसाब से जजमेंट्स आते हैं। तो ऐसे जजमेंट्स लगातार आ रहे हैं जो कि विरोधाभासी हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा अभी नीति आयोग को कि अरे साहब आप जल्दी से कुछ पॉलिसी बनाइए, हमको इंटीग्रेशन में बड़ा फ़ायदा दिख रहा है, इंटीग्रेशन में कुछ करना चाहिए। जज साहब लोगों के वो कमेंट्री थे, मतलब कि कमेंट्स थे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा, उन्होंने डायरेक्ट किया और जनवरी 2024 में हियरिंग है नेक्स्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की भी बात है, अभी आप लोग तो नहीं जान रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन जो दूसरे लोग अगर सीनियर्स इस बात को सुन रहे हों तो देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलती है। गुजरात वाला केस है या कोई भी है। तो अभी इस स्लाइड के अंत में मैं नए BMS के लड़कों को, जो पूरे भारत के स्टूडेंट्स हैं सभी कॉलेजेस के, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेदा इज़ अ कम्प्लीटली लीगलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एंड इन अब्रॉड। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28-29 countries they have accepted Ayurveda as a medicine system of medicine, and name Ayurveda is all across globe, whatever the country and on which part, no problem in that way. So कितनी प्रोग्रेसेस हुई हैं हमने, चलिए ठीक है बात कर ली कि भाई हमारा लीगल स्टेटस क्या है। अब चूँकि आपको जल्दी से सब कुछ जल्दी से पता नहीं, तो हमारी प्रोग्रेस, आप जब 2023 में एडमिशन लिए हैं एंड इन विच कॉलेज यू आर, irrespective of that, you just see that college 5 years back, infrastructure was not as good as it is today. Whichever the college, everywhere there is a growth in the infrastructure. The very good curriculum you have, so good curriculum that even I feel कि यार इस curriculum से पढ़े होते उस ज़माने में जब हमने 1986 में एडमिशन लिया था और ऐसा क्यूरिकुलम होता तो आज हम कुछ और अच्छा जानते। लेकिन चलिए, तो डायनेमिक प्रोसेस है, हर समय हर जगह क्यूरिकुलम बदलते हैं। बीएससी का उस समय का क्यूरिकुलम जो हमने पास किया, आज का बीएससी का क्यूरिकुलम एकदम अलग है। एमबीबीएस का भी क्यूरिकुलम उस समय का और आज का एमबीबीएस का भी क्यूरिकुलम एकदम अलग है। दिस इज़ द डायनेमिक प्रोसेस, but you have a very good curriculum, you will like it, you will enjoy it, and they will make you the physician or the surgeon, whatever you want to be. The elegance in the institutions, हाँ, ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस में एलिगेंस है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को देखिए, आप NIEDU को देखिए, आप इटरा जाइए। बड़े बड़े संस्थानों का नाम लेने का मतलब ही नहीं है कि आपका कॉलेज छोटा है या ख़राब है। आप अपने कॉलेज को देखिए, आपको आपके सीनियर्स बताएंगे अभी आपका पहला हफ्ता जा रहा है कि नहीं, ये अभी बन रहा है, या ये अभी ये नहीं था 2 साल पहले, अब ये हॉस्टल आ गया है, या अब ये डिपार्टमेंट के इतने फ्लोर्स बन गए हैं। हाँ, तो देयर इज़ समथिंग, there is elegance in the institution, the effective acceptance among all concerns of healthcare professional. This line is the very important. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फिर से अभी पूछिए वही वाला सवाल कि why should I do BMS। तो अब ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि लीगल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आप कर सकते हो, आपको सोशल टाबू कोई नहीं है इसका, अभी इक्विवेलेंस में है। और सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, चाहे उनके पास जो डिग्री हो, 2-4% को छोड़ दीजिए जो कि ये भी नहीं मानेंगे कि भारत भी एक देश है और उनको नागरिकता भारतीय और उनको भारत में रहना चाहिए। ऐसे हैं लोग जो कि उनको खाली भारत में बुराई दिखाई देती है, वो लोग ज़रूर कहेंगे कि नहीं आयुर्वेद में कुछ नहीं है। लेकिन आज मेजॉरिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो ये मानती है कि आयुर्वेद में बहुत कुछ है। और मार्केट में तो आपका इतना शेयर आ गया है ना, जिस जगह पर जाइए, जैसे जाइए, आपको आयुर्वेद का मार्केट हर जगह दिख रहा है। आगे अभी इस पर बात करेंगे। और ये देखिए, ये डेनमार्क की एक एजेंसी है, इनवाइट कर रही है टेक लोगों को कि आयुर्वेद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे। जो लोग जा रहे हैं तमाम IITians और द BITSian और द NITians, all who are having interest in the computer science, this Denmark company of the Denmark is inviting them for the application of the artificial intelligence। अब देखिए, चलिए थोड़ा पूरा घूम लिए, अब नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है और आपको क्या क्या मिल सकता है। आप जब 5 साल के बाद निकलेंगे, चलिए आपने अभी PG नहीं की है या PG मतलब ये PG करने के बाद आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। योर अपॉइंटमेंट एज ए मेडिकल ऑफिसर
of Ayurveda in all over in the state governments. Every state government is having the post. Some state governments are enhancing the post. Some enhanced government have started recruiting the post. And apart from that, central government, the CGHS, appointments as a research officer in the Central Council of Research in Ayurvedic Studies, and other research councils also, they are creating post for the Ayurveda, postgraduates for the research purposes, even the defense. अपॉइंटमेंट्स एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे आपके टीचर्स आज बैठे हुए हैं आपको ट्रांजिशनल करिकुलम में, आप वो हो सकते हो राइट फ्रॉम किसी भी लेवल पर, किसी भी जगह पे. अपॉइंटमेंट एज ए फार्मेसी मैनेजर, हाँ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहता है कि एक BMS डॉक्टर होना चाहिए अगर आपके पास फार्मेसी है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा लोचा है, अब उस पर समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए अभी आपको उस पर क्या बताएं कि वहाँ पर और करके BSc बॉटनी, BSc केमिस्ट्री सब दे रखा है, तो वो थोड़ी सी एक चीज़ है जहाँ पर कि करेक्शंस की ज़रूरत है. देन अपॉइंटमेंट एज ए फार्मेसी मैनेजर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग टेस्टिंग, हाँ ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भी BMS और MD आयुर्वेद के लिए ड्यू समय में आएगा तो आएगा. अपॉइंटमेंट एज ए लीगल कंसल्टेंट अटॉर्नी, हाँ आप ये भी हो सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया एक स्कोप अनटच्ड फील्ड है जिसमें कि लोगों को बहुत अच्छा दिख रहा है कि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप अब पहले ही दिन आपसे हम क्या बताएं कि इसमें क्या है कैसे है, लेकिन हाँ इतना बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत गालियाँ सुनी हैं जब 2002 में रसशास्त्र का, भैषज कल्पना का सिलेबस बदला गया PG का, और उस समय के तमाम, मैं सबसे जूनियर मोस्ट था उस समय सिलेबस कमेटी में, बीइंग इटरा जामनगर. मैं आज BHU से आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कैरियर की शुरुआत जामनगर से ही रही है. तो जामनगर से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और जब मैं CCI में पहुंचा सिलेबस कमेटी में, तो मैंने अपने सभी वरिष्ठ से करबद्ध निवेदन किया कि दिन इसका आ रहा है, इसको रसशास्त्र भैषज कल्पना में डाला जाए, ड्रग एंड पॉलिसी का. उसके बाद मैंने ऐसी भी गालियां सुनी हैं कि कोई जामनगर में आनंद चौधरी है पूरे रसशास्त्र को ख़त्म करने पर तुला हुआ है, रसशास्त्र के लड़कों को क्या ज़रूरत है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ने की, अरे पूरा पेपर बना दिया, अब कौन पढ़ाएगा उस पेपर को, कौन सा रसशास्त्र का. उस समय के लोग उनको पढ़ाना, भाई नया नया आया था, दिक्कत सारी थी, लेकिन आज लोग मास्टर हैं इसके और एंजॉय कर रहे हैं. रसशास्त्र वालों के लिए अपॉर्चुनिटी खुल रही है. ये तो दुनिया का दस्तूर है कि पहले आपका विरोध होगा, फिर धीरे धीरे लोग उसको समझेंगे, फिर आपका समर्थन करेंगे. तो मेरा भी बहुत विरोध हुआ, बहुत गालियाँ खाई मैंने एकेडमिकली इस पर कि क्यों पेपर 4th आया, और गुरुजी लोग भी नहीं मान रहे थे कि पेपर 4th उसमें डाला जाए, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक आए, FSSAI आए, इंटरनेशनल रूल्स आए. नहीं डालना चाह रहे थे लोग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आए, नहीं जानना चाह रहे थे, लेकिन आज सभी लोग चाहते हैं कि नहीं हम ये जाने. तो इतना फ़र्क है. लेकिन हाँ, इसके लिए मुझे अपनी बलि देनी पड़ी थी, तो ऐसे और बलियाँ देनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, आजकल भी इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा हमने निवेदन जारी रखे हैं अपने. एनीहाउ, हाँ ये भी ध्यान के आपको उत्साह होगा कि जितनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनमें आयुर्वेदिक इंटरवेंशंस भी अब रिम्बर्सेबल है, लेकिन थोड़ा और अच्छे रूप में हो, इसके लिए काम हो रहा है. ये देखिए ज़रा, ये क्या है. जब हम आपके लिए ये तैयार कर रहे थे तो उस समय हमने थोड़ा सा सब लेटेस्ट चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, तो मैं YouTube पर चला गया. YouTube पर मुझे ऐसे ऐसे वीडियोस दिखे, BMS कभी ना करें टाइटल है. मैंने YouTube पर ऐसे भी वीडियोस देखे, क्यों ना करें BMS, ऐसे भी देखे, BMS है धोखा. अरे भाई सब YouTube पर है, उसको भी देख लेना आप, और मैं ये जो बोल रहा हूँ आपसे और दोनों को मिला लेना. मैंने तो अभी नहीं सुना कि उन लोगों ने क्या कहा, लेकिन टाइटल पढ़ी, लेकिन आप मिलाना और तुलना करना. और मेरी एक भी बात अगर आप नेट पर कहीं भी अगर देखो और उसको रीचेक करो, गलत मिले तो मुझे बताओ. गलत मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर कुछ भी बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक बोल रहा हूँ और एकदम एविडेंस दिखा नहीं सकता अभी आपको, समय की कमी है. आप कभी भी कांटेक्ट करिए. आप आयुर्वेद परिवार में आपका स्वागत है, आप आ चुके हैं, आपको बधाइयाँ बहुत सारी, वो तो मैं अभी लास्ट में देता हैं. लेकिन इस समय ये एक चैनल है जो मैं अभी जून से शुरू किया हूँ, 3-4 महीने हुए. इसका नाम है एनालिटिका आयुर्वेदा, राइट. इस एनालिटिका आयुर्वेदा चैनल पर अगर आप देखेंगे, मेरे नाम से आप सर्च करेंगे एनालिटिका, ANLITIKA, राइट. तो आपको अगर कभी भी डिप्रेशन हो रहा हो तो इनको देखिए. 100 वीडियोज़ से ज़्यादा हो चुके हैं इस समय. आपको हर चीज़ मिलेगी, इवन आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, रिसर्चेस पर बात करते हुए मिलेंगी, मेडिसिन पर मिलेंगी. मतलब मैं इतना कह रहा हूँ कि उन वीडियोज़ को अगर आप देख रहे हो ना कि BMS कभी ना करें, BMS है धोखा, तो उनको भी देखिए, बिल्कुल देखना चाहिए. बस साथ में
हमारे वीडियोस को भी देखिए और बहुत सारे हमारे मित्रों के भी देखिए, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, वो मिडनाइट रसेस नहीं आएंगे कि आप कहें कि अरे क्या हो गया, कहाँ आ गए ज़िंदगी। लेकिन आपकी ज़िंदगी आपका भाग्य प्रारब्ध बहुत सही जगह पर ले आया है। और ये सब तो चलिए गवर्नमेंट की बातें हैं, मुझे इस पर लिखना चाहिए था लेकिन जगह की कमी है। आगे अभी चांस मिलेगा, एक दो कॉलेजेस में तो ज़्यादा मैं खुद ही नहीं बोल पाऊँगा, अभी एक BHU में ही बोलना है, तो उसमें मैं इसको चेंज करूँगा, इसमें से काफ़ी चीज़ें चेंज करूँगा। जो मेरा ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लाया हूँ, ये तो कल एक किसी कॉलेज के लिए था, लेकिन जब मैं BHU में वही बात करूँगा, 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है या अभी से शुरू हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज मिलेंगी क्योंकि थॉट तो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आ सकती है, योर ओन वेंचर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस समय की कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। देखिए ना, कितने सारे आयुर्वेदिक लोगों ने अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल करके लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो आप, ये तो गवर्नमेंट के ही भरोसे रहने वाली बात है। यहाँ पर तो खाली वो नेशनल शब्द कि सरकार क्या क्या कर रही है ना, भारत में सरकार क्या कर रही है, सरकारी इस नौकरी की क्या स्थिति है, वो मैंने बताया। स्काई इज, यू हैव अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, you sky is the limit with your private or your own ventures. And so try to see Analytica Ayurveda YouTube channel and I assure you there will be no depression. ग्लोबली क्या हाल है? बहुत शानदार हाल है, कभी ऐसा था ही नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर वही दिमाग में रखिए, वाई शुड आई डू BAMS। तो कुछ आपकी बदली मानसिकता, अभी थोड़ा और बदलेगी, 10 मिनट दीजिए, अभी और बदल जाएगी, ठीक है। तो अभी लीगल की बात हो गई, गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई, सोशल रिकॉग्निशन की बात हो गई, प्रोग्रेस की बात हो गई। अब जरा विदेश चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार, ये जो पब्लिकेशन है बेंचमार्क ऑफ आयुर्वेदा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकेंड पब्लिकेशन आया है, सेकेंड एडिशन है, कुछ ही महीने पहले आया है। मतलब WHO आयुर्वेद के ऊपर रिकॉग्नाइज करता है। ये ICD का सेकेंड वॉल्यूम आने वाला है। इस सेकेंड वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम 2011 में ऐड हुआ था, तो चाइनीज़ मेडिसिन ग्लोबल हो गई। आप इतने लकी टाइम पर आए हो BMS पढ़ने कि फरवरी 24 तक ये नोटिफाई होने जा रहा है ICD में। ये अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने, सेक्रेटरी साहब कौन है अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए। तो सेक्रेटरी साहब ने अभी इंटरव्यू दिया था द हिंदू को कि ICD WHO के में ऐड होने जा रही है, पूरी ICD में ऐड होने जा रहा है पूरी आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट एनेक्सर चाइनीज़ मेडिसिन है जो 2011 में हुआ, और अब फरवरी 24 में तक ये पूरा आ जाएगा। इसके लिए 5 साल काम किया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में काम किया है सेक्रेटरी साहब की लीडरशिप में, और अब वो ड्रीम कम होने जा रहा है, पूरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है, ड्रीम गोइंग टू बी ट्रू। और जब ये फरवरी में WHO में ICD में आ जाएगा, तो जैसे चाइनीज़ ग्लोबल है वैसे ही आयुर्वेदा भी ग्लोबल होगा, और इसमें पूरी ग्लॉसरी पूरे बिफोर वर्ल्ड होगी, एंड यू विल बी जस्ट ट्रीटेड एज पार्ट। वेट करिए फरवरी 24। अब आइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NCCIH, तो वहाँ तो इतने काम हो रहे हैं कि अभी कल डेली मैं इन साइट्स पे जाता हूँ अपने रूटीन में। मैंने कल देखा कि ये लोगों ने योगा की E-बुक निकाल दी है अच्छी खासी, वो ढेर सारे आयुर्वेदिक पैटर्न्स पर आयुर्वेद की डिफिनेशन के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। कौन? ये अंकल सैम है, US में सबसे बड़ी एजेंसी है उनकी। यूरोपियन यूनियन, आप जानते हैं बच्चों, आप 12th और BSc पास तो ही हैं, तो आप यू आर नोइंग वेरी वेल। यूरोपियन यूनियन का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेगुलेटरी अफेयर्स, आयुर्वेद के बारे में ढेरों रेगुलेशंस हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। मैंने कहा ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नए हैं। यूरोपियन मार्केट में कोई भी हर्ब्स है 15 साल से चल रही है और उसका कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है, यू कैन सेल आउट, यू कैन डू द प्रैक्टिस। देन हेल्थ ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छी जगह यही है इस समय तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपने यहाँ बनाने की अनुमति दे दिया है। यू कैन मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक मेडिसिन एट द सॉइल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, and there is a licensing pattern. It is not even into the US or the European Union. लेकिन हेल्थ ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया। मैंने कहा ना, एनालिटिका आयुर्वेदा पर जाइए, एक फुल एपिसोड मैंने हर एक रीजन पर किए हैं, जितने भी रीजन्स हैं उनके ऊपर। एट साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज़ द बिम्स्टेक,
and SAARC, many more. Everywhere is Ayurveda. At Middle East Asia, अरब, आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ रूस यूक्रेन वाला कारण है वहाँ, इज़राइल और पैलेस्टीन वाला, लेकिन they are working good. Every country, yes, I remember all the videos of the Analytica Ayurveda which I uploaded on the different regions. You can consult there, even the African continent also. So you are going to have a BMS degree after 5 years, right? Wherever you have taken admission, no matter. So a degree of the BMS you are going to have after 5 years. I am repeatedly saying it. And the question first was there, what? Why should I do BMS? I tried to make you understand it is legally viable. It has given good opportunity. It is socially acceptable. It is economic. It is providing you economic growth, a good market share in the economy of the country Bharat. I tried to convince you, right? But see, what are these persons get it? What are these? At the Secretary of the Government of Bharat, Padma Shri वैद्य राजेश कोटेचा. मैंने आपसे कहा कि BMS डिग्री होल्डर और कौन हमारे सेक्रेटरी हैं, हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे. तो वैद्य राजेश कोटेचा जी, वैद्य शब्द लगा रहा हूँ, पद्म श्री मिली हुई है. आप BMS डिग्री के साथ इस समय क्या क्या कर सकते हो, ये देखिए, माई प्रोग्रेसिव पैनोरामिक पोर्टफोलियो इन आयुर्वेदा. आप क्या कर सकते हो जो आप बैठे हुए हो 100 लोग 60 लोग, अब या तो मैं एनालिटिका आयुर्वेदा पर बोल रहा हूँ तो थाउजेंड्स ऑफ यू न्यूली एडमिटेड इन द BMS. ये देखिए, प्रोफेसर संजीव शर्मा हैं, वाइस चांसलर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर के. वैद्य समीर जमदग्नि जी पुणे में हैं. उस एरिया के लोग सुन रहे हो तो को तो जानते ही हैं, लोग जो बाहरी दूसरे लोगों को वो अभी जान जाएंगे. इज ए सच ए ग्रेट फिजिशियन, सच ए गुड ह्यूमन बीइंग. को BMS के लड़कों को मैंने देखा है कि उनकी क्लिनिक में 15-15, 20-20 लोग खड़े होकर के कंसल्टेशन देखते हैं, और ये सबको अपने खर्चे पर सबको साल में 4 दिन के लिए यात्रा कराते हैं. उसमें BMS के 200-250 स्टूडेंट होते हैं, आप उनमें से एक हो सकते हैं. एज ए फिजिशियन प्रोफेसर S जयदेवन प्रिंसिपल हैं आयुर्वेदशाला कोट्टकल के. आप नेट पर देखिएगा, आयुर्वेदशाला में वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है 6 महीने की. ऐसा नहीं कि गए आज पर्ची कटाए और एडमिट हो गए वहाँ, 6 महीना वेटिंग लिस्ट. सर्जन के रूप में, हाँ, एक दिमाग रहता है कि यार मैं तो सर्जरी करना चाहता था प्रोफेसर, तो इसमें क्या होगा, आयुर्वेद में सर्जरी अलाउ है कि नहीं अलाउ है. प्रोफेसर M साहू 2023 में इनको पद्मश्री मिली है. इनकी योग्यताओं को भारत सरकार ने परखा होगा, उसमें यही लिखा हुआ है कि सर्जन है तो आपकी विधा आयुर्वेदिक सर्जरी की रिकॉग्निशन है. आप मैन्युफैक्चरर यूनिट में, इंडस्ट्री में, बेटर वर्ड यहाँ इंडस्ट्री होता, मैंने कहा ना कि इसको बदलेंगे क्योंकि ये तो अभी बस एक के लिए चलाई गई है, आगे कहीं अभी बोलेंगे इसको और मॉडिफाई करेंगे और अच्छा करेंगे, और फिर और अच्छा करके आपके एनालिटिका आयुर्वेदा आपके पास आएंगे. ये तो अभी पहली इस तरह के बनाया है. एज ए मैन्युफैक्चरर की जगह हम इंडस्ट्री लिख सकते हैं. तो डॉक्टर CK कटियार हैं, ये डाबर, रेनेबेक्सी, इमामी, और इनके आज के 15 साल का पहले का पैकेज था 70 लाख पर एनम कॉस्ट टू द कंपनी, CTT. तो आगे चलते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में डॉक्टर मनोज नेसरी हैं, एडवाइज़र, बड़ी डिप्लोमेटिक लेवल की पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में. प्रोफेसर अनूप ठाकर हैं, डायरेक्टर इटरा जामनगर, और हमारे BHU में प्रोफेसर PK गोस्वामी जी हैं जो डीन हैं. लीगल अटॉर्नी का जो मैं स्कोप बात कर रहा था, डॉक्टर DC कटोच हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. हियर शुड बी द फॉर्मर. नाउ सी व्हाट इज द कॉमन अमंग all are having BAMS degree. That is the common among all. इतने सारे जो लोग आपने देखा, सबसे बड़ी IAS होते हैं ना लोग, लाखों लोग, सपना उनका एक ही होता है, कभी भी किसी भी समय पर जीवन में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने का. और ये एक BMS डिग्रीधारी बंदा जिसको आप राजेश कोटेचा जी कहते हैं, सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. 6 साल से लगातार सेक्रेटरी. कोई IAS इतना लंबा सेक्रेटरी रह ही नहीं सकता. They are meant for to be secretary. But this BAMS is now senior most secretary to the government of India. And this is the common among we all. From here to here. And you are going to have a degree of BMS after 5 years.
right? So you have all these opportunities. Just I am showing, including all those medical officer, research officer. But these are the rarest example, and the rarest examples never meet the rules. But you may be here after 25 or the 30 years. Think about this. Yes, you replace here, you have to replace here, you replace everyone. आयुर्वेद में इससे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर सिर्फ इस समय जीवित लोगों के ही नाम रखे हैं, ये आपको दिलाने के लिए कि आप कहाँ आपने कदम रख दिए हैं और इन कदमों से BMS करके और PG करके PhD करके आप कहाँ तक जा सकते हैं. यस, डॉक्ट्रिन्स, तो आयुर्वेद ये सब डॉक्ट्रिन्स पर है, और जो कि दुनिया की दूसरी मेडिकल सिस्टम्स नहीं कवर करती हैं. यस, ट्रू, नहीं करती हैं, और मैं किसी मेडिकल सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूँ. एलोपैथ की सर्जरी के आगे आज की जो है हम नहीं टिकते हैं. होम्योपैथी की जो अपनी विशेषताएं हैं हम उनको नहीं टच कर पाते हैं. यूनानी की जो अपनी विशेषताएं हैं स्किन पर, हम उसको नहीं टच कर पाते हैं. हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं हमारे क्रॉनिक कंडीशन में. हमारे वेलनेस सबसे जो अच्छा हमारा हिस्सा है, जो कि सबसे अच्छा ट्रीट करता है, उसको मैं किसी एक बीमारी पर नहीं रोकना चाहता. वी आर एवरीवेयर एंड वी आर डूइंग फर्स्ट क्लास थिंग्स एट एवरी मोमेंट, बट where others are not doing, with due recognition to all of them, that is the mental health. पूरा यूरोप पागल पड़ा है, मेंटल पीस चाहिए सबको. तो मेंटल पीस उनको एलोपैथी से नहीं मिलती है, मेंटल पीस उनको होम्योपैथी से नहीं मिल सकती है, यूनानी से नहीं मिल सकती है. मेंटल पीस के लिए एक ही चिकित्सा पद्धति है, एक ही फिलॉसफी है, वो है सत्वाजय चिकित्सा से आयुर्वेद देती है, स्पिरिचुअलिज्म से. प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित विधीयते, प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय. आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे कि होता है ना कि PG में टॉपर है तो MD काय चिकित्सा लेगा, MD शल्य लेगा, लड़की है तो MD प्रसूति लेगी, MD आयुर्वेद प्रसूति. इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स के कितने कितने स्कोप हैं, नेशनल ग्लोबल वगैरह हर एक का है. खूब 3 महीने से मैंने इस काम को बहुत अच्छा अंजाम दिया है. यू जस्ट गो एंड चेक इट ऑन द एनालिटिका आयुर्वेदा, सी हियर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द मेंटल हेल्थ. लेकिन आज जो बहुत समझदार लोग हैं वो काय चिकित्सा और शल्य को नहीं फॉलो कर रहे हैं. वो देखते हैं कि ठीक है, हमें अगर कैलिफोर्निया में बसना है और हमको पेरिस और लंदन में रहना है और सिडनी में जाना है और मेलबॉर्न में जाना है, तो वो MD आयुर्वेद स्वस्थवृत्त ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लीगलिटी की क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि वेदर यू कैन प्रैक्टिस और नॉट. बहुत सारे कंट्री में ये तो अभी है, आप मेडिसिन से इंटरवेंशन देंगे तो आपको लीगल क्वेश्चन में फंसेंगे. लेकिन यहाँ तो जब आप प्रीचिंग करने वाले हैं, आप कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं जहाँ पर कि ओरल इंटरवेंशन नहीं देना है योगा के साथ, राइट, तो आप छाए हुए हैं. सो आप फिर सोचिए कि वाई शुड आई डू BAMS, क्योंकि BAMS करने में ही आपको ये मेंटल हेल्थ मिलेगी और प्रमोशन ऑफ हेल्थ, सोशल वेलबींग, हमारी चरक संहिता है और इसमें सारी चीज़ें सामान्य रूप से. आइए थोड़ा औषधियों की बात एक बार फिर से कर लें. तो औषधियों की बात जब एक बार फिर से आप करेंगे, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आंवला और तुलसी सामान्य रूप से नहीं, इतनी विशिष्ट है आंवला तुलसी. यहाँ आंवला के ऊपर 10 पन्ने हैं, यहाँ तुलसी के ऊपर 10 पन्ने हैं. हाँ, याद आया, बॉटनी में पढ़ा था ना. तो ये यहाँ पर एक एक ऐसे ही दिया हुआ है. ये एक एक किताब के पूरे क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन है, एक एक हर्ब का, एक एक मिनरल मेटल का. हाँ, हम लोग मिनरल मेटल्स भी यूज़ करते हैं जैसा कि IP ने दिया हुआ है. आप लोगों में तो बहुत सारे लोगों के घर में डॉक्टर्स होंगे या घर में वैद्य भी हो सकते हैं, आपके पिताजी भी BMS हो सकते हैं, मम्मी BMS हो सकती है. तो आप इससे फेमिलियर होंगे कि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, या आपके घर में लोग MBBS लोगों की बाहर है तो उनसे आप फेमस होंगे कि हाँ ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है और इनका ये स्टैंडर्ड है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, IP. अरे यूनाइटेड स्टेट में भी हर्बल फार्माकोपिया काम कर रही है, अमेरिकन हर्बल फार्माकोपिया. तो ये फार्माकोपिया काम कर रही है. और देखिए, क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी 8000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, GMP नोटिफिकेशन है. ये नहीं कि कोई भी घर में जाता चला करके पीस लिया और कह दिया कि आयुर्वेदिक दवाई है, ऐसा नहीं है. और बिजनेस देखिए कितना है. आज के 10 साल पहले हम कहते थे कि 20 लाख करोड़ रुपया है, आज जो है 20,000 करोड़ रुपया है. मैं इसी का विद्यार्थी हूँ, यही मेरा थ्रस्ट एरिया है. तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने को लर्नर्स के साथ
हमेशा यही बात करता था कि 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है आज के 10 साल पहले। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है 9 दिसंबर वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस गोवा में कि 1,20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। तो कितना मल्टीफोल्ड आप डेवलप कर रहे हैं। जीडीपी आपकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन 16% का है, और ये कमीशन है जो कि काम करता है आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर के, फार्माकोपियल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। चलिए साहब, क्लिनिक्स, अल्टीमेटली आप ना वाई शुड आई डू BAMS, हाँ रिमेंबर, याद करते रहिए कि वाई शुड आई डू BAMS। यहाँ देखिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एनी हाउ एनी वेयर एनी मीन्स, आपको ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, मतलब उन सारे से ड्रग्स को, मेडिसिन को पहचानिए, फिर यहाँ आइए। आपके पास सिंपल डिसऑर्डर्स ठीक करने के लिए सब कुछ है, डे टू डे, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए डे टू डे। हाँ, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस भी, मैं किसी दवाई बीमारी का नाम लेकर के इसको संकुचित नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहूँ कि गठिया ठीक कर देगा और डे टू डे में आपका सर्दी जुकाम ठीक कर देगा, नहीं, इसको मैं थोड़ा ब्रॉडर रहना चाह रहा हूँ। हाँ, इसको देखिए, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। वैद्य मनोज नेश्री जी के चीफ एडिटर हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आपने अगर हैरिसन डेविडसन का सब नाम सुना होगा, वो तो जो है वो अलग है, वो हमारी चरक संहिता सुश्रुत संहिता है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, फ्री अवेलेबल है। अगर सीनियर्स भी मेरी बात सुन रहे हो, आप इसको डाउनलोड करिए, देखिए आप कितने निष्णात चिकित्सक अच्छे बनते हैं। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंचकर्म और कहीं नहीं है आयुर्वेद में है, क्षार सूत्र और कहीं नहीं है आयुर्वेद में है, अग्निकर्म और कहीं नहीं है आयुर्वेद में है, मर्म चिकित्सा और कहीं नहीं है आयुर्वेद में है, मानसिक चिकित्सा और सत्वाज चिकित्सा जो मैं बात कर रहा था और कहीं नहीं है आयुर्वेद में है। थिंक व्हाई शुड आई डू BAMS। इतनी सारी प्रिविलेजेस आपको सिर्फ BAMS में मिल रही हैं। देन ये आपका आयुर्वेदशाला का फर्स्ट वेबसाइट का पिक्चर है, जिसमें कि आयुर्वेद को डिफाइन किया गया है एक अच्छी तरह से। अब जब आप आ ही गए हैं और इस क्वेश्चन के साथ आ गए हैं कि व्हाई शुड आई डू BAMS, तो ये आपकी ज़िंदगी के कस्टोडियंस हैं प्रोफेशनल लाइफ के। जैसे कि पर्सनल लाइफ में अभी तक आपके मम्मी पापा थे, चाचा चाची थे, मामा मामी थे, भाई बहन थे, बड़ा भाई बड़ा छोटा, टीचर्स आपको कोई बहुत अच्छे मिले होंगे, इंटर तक आपको बहुत प्यार करते होंगे, आप उनको बहुत आदर करते होंगे, तो वो आपके कस्टोडियन थे, मेंटर उनको कहा जाता है। अब देखिए, जब आप BAMS होने को हैं, अब आप आ गए हैं, तो आपके कस्टोडियंस कौन हैं आपके प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्टिस में? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्चेज इन आयुर्वेदा साइंसेज, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल, स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑल, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, जहाँ भी आपका कॉलेज, जहाँ भी आपने एडमिशन लिया हो, जो उसकी यूनिवर्सिटी हो, जिससे उसका एफिलिएशन हो, MUHS से लेकर RGHS तक, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से लेकर जोधपुर यूनिवर्सिटी तक, कहीं भी। एंड देन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस कंट्री, भारत में जो भी, मैं भारत कहने की आदत डाल रहा हूँ, इंडिया कहने की आदत पड़ गई थी ना, लेकिन आजकल इंडिया और भारत में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो लेकिन भारत कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल अक्रॉस कंट्री, देखिए ये पहला इंस्टीट्यूशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कि इंस्टीट्यूशनल डिग्री सहित आयुर्वेद की शैक्षणिक संस्थान में सबसे पहली पढ़ाई शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी लेवल पर, राइट, 1920। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। मैडम तनुजा नेश्री, प्रोफेसर तनुजा नेश्री, सी इज ऑल्सो BAMS, इसको लीड कर रही हैं। नए कीर्तिमान, कौन वहाँ नहीं गया है ट्रीटमेंट के लिए, कितने VIPs नहीं पहुँचे हैं। और अरे हाँ, वो क्लिनिक वाली में बात कर रहा था, तो खैर चलिए, जो पीछे के कांग्रेस ने किया उस पर क्यों बात करना। लेकिन अभी राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, तो उनके घुटनों में दर्द हुआ था, तो अभी पिछले महीने में 15 दिन या 10 दिन आयुर्वेदशाला कोट्टकल में जा कर के अपना स्वास्थ्य लाभ लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में हैं। और क्वेश्चन फिर से वही आपके सामने है कि व्हाई शुड आई डू BAMS। आपका उत्तर अब क्या है? क्या ये है यस आई मस्ट डू BAMS? आर यू कन्विंस? थिंक ऑन इट। लीगलिटी है, सोशलिटी है, इकोनॉमिक्स है, डॉक्टर बनने का चांस है, हर एक चीज़ आपको आयुर्वेद में मिल रही है, और वो भी मिल रही है जो दूसरी पैथी में नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर आप न्यूरो सर्जन नहीं हो सकते, बट न्यूरो फिजिशियन आप यहाँ बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप कार्डियो सर्जन एमडी शल्य करके नहीं बन सकते, बट आप कार्डियक पे एक बहुत बड़ा चेन चला सकते हैं, कार्डियक एलिमेंट्स में। ये सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ आपके पास है। तो नाउ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और ये देखिए ये पिक्चर कल की है। कल देश भर के अखबारों ने, मुझे इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, ये हेडलाइन आई, लैंसेट में आई है, और उसके बाद सभी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का ये एक रिसर्च है, जिससे ये कहता है कि एंटीबायोटिक्स फॉर कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शंस नो लॉन्गर इफेक्टिव, लैंसेट स्टडी एवरीवेयर। मैंने इसको कई वेबसाइट पे देखा, और कल मुझे बोलना था, तो मैं इसको कल मतलब 1 नवंबर को, आज 2 नवंबर को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके सामने। ये 3 नवंबर कल शाम को 6 बजे अपलोड होगा, तो आप इसको कल से देख पाएंगे, मतलब कि हाँ 3 नवंबर से देख पाएंगे। ये कल और आज में डेट बतानी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, ये बता रहे हैं कि निमोनिया के लिए और भी जितने भी कॉमन इन्फेक्शंस हैं चाइल्डहुड के लिए, एंटीबायोटिक्स सब काम नहीं कर रही हैं। अभी कोविड हुआ था ना, बहुत सारी मेडिसिन ने काम नहीं किया, और भारत में आयुर्वेद ने बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जी ने बार बार बोला, इम्यूनिटी शब्द उसमें खूब आप लोगों ने सुना, व्याधि क्षमित्व बढ़ाया, गिलोय खूब लोगों ने पिया। यहाँ भी अब सिर्फ आयुर्वेद है। स्वर्ण प्राशन या कोई और विधि से इम्यूनिटी इन्हेंस करिए, इम्यूनिटी इन्हेंस होगी बच्चे की, बच्चा बीमार नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स फेल हो रही हैं, ये 1 नवंबर को पूरी दुनिया के अखबारों ने इसको छापा है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, द गार्जियन, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, हिंदी के अखबारों में हिंदुस्तान, सब ने कल इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिया है। अब आपके सीनियर सुन रहे होंगे मेरी बात, तो उनको इसको पूरा राइटअप को डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए। लैंसेट पे ही छपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति से भी बचने के लिए आयुर्वेद है। अब आप सोचिए, और फिर से मेरे पहले क्वेश्चन पर जाइए कि वाई शुड आई डू BMS? कैन इट बी आंसर्ड नाउ? यस, आई मस्ट डू BMS। आई डू बिलीव। 1 नवंबर को जिन 100 लोगों के बीच में मैंने ये बात बोली, तो जिसको कहते हैं ना कि एक स्लोगन टाइप आया। जब मैंने पूछा उनसे, उन स्टूडेंट से, ऐसे शुरू किया था, थोड़ा वहाँ और ज़्यादा समय ले लिया था, आपका कम समय लिया हूँ, थोड़ा वहाँ और इलाबोरेट होकर के एग्जाम्पल्स दे के बोला था। यहाँ थोड़ा ऑडियो और का सब टाइम फेज का चक्कर है। उन्होंने एक स्लोगन के रूप में जवाब दिया था, जैसे ना कि हाउ इज जोश, तो जैसा वो लोग जोश देते हैं ना, तो मैंने पूछा जब लास्ट में उन 100 बच्चों से, उन्होंने कहा यस, आई मस्ट डू BMS। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, एंड नाउ योर थॉट प्रोसेस शुड बी चेंज्ड, ऑल नेगेटिविटी शुड बी ओवर। Yes, you must do BMS. Here is everything what you want. Thank you everyone, and continue trying to get Ayurveda in a very better perspectives. Welcome to you all in the Ayurveda fraternity of the 2023. Thank you.